session is on manufacturing, core of any business, where we are going to discuss revolutionizing in MSME. For this session, I would like to invite our panelist, Kritika Tripathi, CEO, Ecoger Technologies Limited. Next, I would like to invite Mr. Prabhu Naidu, founder and director, Prabhu Naidu Limited. Mr. Rahul, co-founder and director, World. I would request three of them to please join us on the stage. The session is going to be moderated by Mr. Deepak Jha, PR EPAC. Thank you so much everyone for joining us, and after the first session which was very insightful and very informative, I'm sure कि ये session भी काफ़ी insightful होगा और हम कोशिश करेंगे कि we have very limited time, almost 25 minutes. इस constrained time में we can drive something very valuable for you people, and I'm sure topic is very broad और मैं जानता हूँ कि we have very experience based panel, but इस limited time में we can drive something very valuable for you. So Kritika ji, my first question is for you. We are living in a very aspirational India right now, where we are talking about the Viksit Bharat, third largest economy. What do you think? आपको क्या लगता है कि आज के context में जब विकसित भारत और aspirational India की बात हम कर रहे हैं, how MSME in the context of manufacturing sector is contributing in this fundamental, very aspirational, very futuristic vision, where everything will be driven by the technology, our economy will be get बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमी हमारा जो है वो बूम करने वाला है. आपको क्या लगता है कि एमएसएमई सेक्टर का इसमें क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होने वाला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? वेरी गुड मॉर्निंग, माय नेम इज कृतिका. मैं अगर हमारे सेक्टर की बात करूँ जहाँ हम प्लांट एंड मैन्युफैक्चर मतलब एज अ मैन्युफैक्चरर प्लांट एंड मशीनरी, the support that we have seen coming across from the financial units, I would say the empowering new business generation that's coming in, the so-called Gen Z generation. We've now seen people thinking of getting into manufacturing. So I come from a background wherein I am definitely making machines, but I'm also involved in a sector wherein raw material is converted into, I would say, usable material, wherein people are making tableware, crockery. So the type of machines that we make are thermoforming machines, and my clients make tableware out of it. So now if you see, I'm also seeing that MSME sector के अंदर जो raw material वाले आ रहे हैं, अगर हम एक छोटे farm land की बात करें, तो जो farmer आज के डेट पे rice straw, wheat straw और बगास grow कर रहे हैं, उनके पास opportunity है कि वो हमसे connect करें, हमसे आगे वो ऐसे जगह पे कनेक्ट हो जहाँ उनका रॉ मटेरियल यूज़ हो. दैट इज़ द फर्स्ट फेज वेयर वी हैव सपोर्टेड देम. सेकेंडली, फिर मेरी मशीन से उसी रॉ मटेरियल से वो टेबलवेयर बने जिससे कि प्लास्टिक छूटे, वो एक मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट है. सो MSME इज प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड दैट ओके, इट इज़ नॉट ऑलवेज a 100 crore business that will flourish. There is always an option that a business that starts with a 5 crore capital goes up and flourishes in the next 3 to 5 years. Thank you. Thank you so much, Kritika. So Rahul, there is one fundamental challenge which right now MSME sector is facing is technological advancement, and I'm sure your company is dealing with the same thing right now with Wall 3D. So और हमने देखा बहुत सारे गवर्नमेंट के डेटा भी ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कैसे MSME कंपनीज जो है वो शट डाउन हो रहे हैं. So आप हमें थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि ये जो एक लार्जर गैप है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, इसको लेकर के MSME सेक्टर का अभी क्या पोजीशन है, क्या चैलेंजेस है, क्या और किया जा सकता है, एंड विद दैट वी आल्सो वांट टू नो कि आपकी कंपनी इस पर्टिकुलर चैलेंज में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है और आप कैसे MSME सेक्टर को ड्राइव कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. So hi everybody, good morning. I'm Rahul. So we are creating India's largest ecosystem on 3D printing technology. So I feel technology is a part of manufacturing.
any technology to come in place, it has to be a process driven. You cannot replace your traditional manufacturing to additive manufacturing. It's a process driven where basically a human and a technology integration is important. There are various government schemes. There are various government schemes which are helping the human and the tech to collaborate, where basically there is a partnership between government, the industry and the academia, where all three work together to give knowledge sharing. There are schemes like Skill India, where the government is taking the initiative that MSMEs should be skilled enough to use this industry 4.0 technology to use in manufacturing. There are schemes like the MSME tool rooms, where if anybody wants to manufacture, how can they use this tool room as a base for getting innovation or technology in their manufacturing. There is also schemes like Atal Tinkering or Atal Innovation Mission, where they are putting 3D printing or they're putting this technology, how they can use additive manufacturing to make products which are for international exports or for growing the industry, the manufacturing of the traditional manufacturing that we are doing. So as a company, what we do is that we try to, partner with government, we try to partner with academia, where we give this technology, also educate. So we are not only educating to MSME, like ma'am rightly said, MSME has a turnover and also one more requirement, but MSME doesn't have an age barrier. We have kids from 7 and 9 years. I have a kid of 9 years who started his own company, registered in MSME, which is purely using 3D printing to make end products. So basically, we are trying to become a mediator between technology and how it can be used to various areas. So that's how technology can be integrated into various industries. This is what I feel. Thank you so much, Rahul. Prabhu, as we discussed earlier, I'm sure you are doing something very great with the women in Maharashtra. Also, there's one thing which right now MSME sector is facing is skill gap, जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपनी. मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि एक तो ये जो फंडामेंटल चैलेंज विच राइट नाउ MSME सेक्टर इज फेसिंग, द स्किल गैप प्रॉब्लम, ये कितना क्रिटिकल है इसको एड्रेस करना अभी के लिए इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, एनी इंटरवेंशन, एनी कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, एंड ऑल्सो वी वांट टू नो कि आप एज अ प्रभु नायडू लिमिटेड इसको लेकर अभी क्या कर रहे हैं, जो पूरा आप मूवमेंट कर रहे हो जिसमें आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हो, उसमें कैसे आप वुमेन्स को जो अनस्किल्ड वुमेन्स हैं उनको कैसे आपने स्किल फोर्स में कन्वर्ट किया. सो टेल मी समथिंग अबाउट इट. Yeah, thank you so much, Rahul, and thank you so much for creating this platform. My name is Prabhu Naidu, and I'm a managing director of Prabhu Naidu Limited. So I'm the representative of a common man of India. So I'm representing right now a common man can really become a managing director of a company, of a limited company. So somebody who doesn't have confidence to create a product, manufacturing product, your future is me. So किसी को अगर लगता है मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा मेरे लाइफ में, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है समझ लीजिएगा आप मेरे जगह पे बैठेंगे एक दिन, तो ये तो पक्का है. सो ये पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ आपको. और दूसरी बात ये है कि मैंने जैसे आपको कहा कि मैं एक कॉमन मैन, हिंदुस्तान का एक कॉमन मैन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो मैं कोयम्बतूर तमिलनाडु से हूँ और करीब 2010 में मैंने सोचा था यार मुझे कुछ करना है. तो ये जर्नी तभी स्टार्ट हुआ था और अभी मी एंड माई वाइफ हम दोनों एक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स हैं. कि 10 साल का जर्नी बहुत सिंपल था, अलग अलग डायमेंशन में हमने अलग अलग किया. मैं फर्स्ट चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है, कि मैन्युफैक्चरिंग एक लैटिन वर्ड से इंस्पायर्ड किया हुआ वर्ड है और मानुस फेसरे इज अ लैटिन वर्ड एंड दैट वर्ड गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम संस्कृत. उसका मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इज नथिंग बट हैंडमेड. तो इंडिया GDP ऑफ 1700 18th सेंचुरी में इंडिया का GDP था, इंडिया वर्ल्ड को करीब 30% का प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा था. ये आप में कितना लोगों को पता है कि ये बहुत गर्व का चीज़ है. मैंने कभी ये पढ़ाई की, ये मुझे समझ में आया कि आज तो हम वर्ल्ड लीडर्स नहीं है, आज जो है चाइना जैसे जो कंट्रीज है वो नंबर 1 है, वो हम क्यों नहीं हो सकता है. तो राहुल, टू जस्ट गिव अ रेफरेंस, माय फर्स्ट इंस्पिरेशन वाज if China can do, if India could do in 1700, why cannot we do now? So that was the first trigger that happened to me in 2010. And after doing lot of research and development by years,
मुझे ये समझ में आया कि भाई हर एक हिंदुस्तानी, हर एक नागरिक के अंदर कुछ ना कुछ कलाकारी है। हर एक नागरिक सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो घर बैठे बैठे मोहनजोदारो हड़प्पा के टाइम पे जो कोई ना कोई पॉटरी का करता था, कोई कपड़ा का करता था, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता था। ऑल ओवर इंडिया से हम जाते थे मोहनजोदारो और वहाँ पे बैठ के माल बेचते थे, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड वहाँ से जाता था। दैट स्टोरी अगेन इंस्पायर्ड मी। तो आज हम करीब करीब 300 गांव के साथ हम एसोसिएटेड है, 5200 औरतों के साथ एसोसिएटेड है। इन 2017 me and my wife, I mean I'm so grateful that my wife has contributed this so much. 2017 से हमने अनस्किल्ड लेबर्स नहीं बोलना चाहता हूँ, अनस्किल्ड विमेन जो होते हैं, घर घर पे जो होते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देने को चालू किया। वो सेमी स्किल बने, वो सेमी स्किल से आज स्किल बने, स्किल से आज सुपर स्किल बने। तो आज के तारीख में हमारे पास 5200 औरतों में से 200 औरतों जो है सुपर स्किल लेबर्स है, उनसे माल बनता है। आई मीन बैग्स बनते हैं, कॉटन कैरी बैग जो आप डीमार्ट में देखते हो, स्टार बाजार में देखते हो, जो टीवी में वगैरह में एक्सपोर्ट में देखते हो। आज के तारीख में करीब करीब 5 लाख बैग बनाने का कैपेसिटी हमने आज बनाया है। करीब करीब 5 साल में एनी टाइम, आज एक दिन में आपको 1 लाख बैग का रिक्वायरमेंट है, हम आपको तीसरा दिन में 1 लाख बैग बना के दे सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द यूनिक स्ट्रेंथ दैट वी आइडेंटिफाई, दैट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यूनिकनेस ये है कि हम नागरिक, हम खुद, मैन पावर इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ व्हाट इंडिया हैज, and we have created a platform where every human being can get connected with every human being and create extraordinary products. And I am playing my role, and I'm inviting everyone to be inspired and do something by yourself. Thank you. Thank you so much, Prabhu. Fifth up, like as Prabhu ji mentioned, like skill manpower. एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चैलेंज है जो नॉट इवन विद एमएसएमई, जो कि लार्जली इंडिया के हर एक सेक्टर जो अभी फेस कर रहा है, like lack of participation of women workforce. As a woman, you are a woman, और ये फंडामेंटल चैलेंज एमएसएमई ही फेस कर रहा है। like मैं और हम सब ये जानना चाहते हैं कि इसके कारण जो women का participation है, like in terms of like participation जो नहीं है उतना जितना होना चाहिए accordingly, so इसका क्या हम like fundamentally देख पा रहे हैं कि क्या क्या significances हैं, क्या क्या इसके consequences हैं, और as a women हम ये जानना चाहते हैं कि EcoSure क्या कुछ इसको लेकर कर रहा है विमेन पार्टिसिपेशन को एमएसएमई सेक्टर में और एनहांस करने के लिए, उसका पार्टिसिपेशन और बढ़ाने के लिए। अगर मैं अगेन जस्ट गोइंग बैक टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन साइड, मैं थोड़ा सा अपनी फैक्ट्रीज पे चली जाऊँ, तो जैसे आपने कहा कि विमेन नहीं है या कम है, सही बात है। देयर आर लॉट ऑफ अनस्किल्ड विमेन हु डू नॉट वांट टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस फॉर अ लॉट ऑफ आई थिंक हिंड्रेंसेस दैट कम इनटू पिक्चर। क्यों आता है ये तो डेफिनेटली एक औरत ही बता सकती है कि उसे क्या दिक्कत है कि वो बाहर नहीं निकलती। बट अगर मैं अपने सेक्शन की बात बताऊं, मेरे सामने मैं इंडिया में हमारी जैसी 100-150 फैक्ट्रीज देखती हूँ, एंड शायद हर फैक्ट्री में आपको कहीं ना कहीं 50 औरतें मिलेंगी जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम कर रही हैं नॉन स्टॉप। अगर मैं स्टाफ साइड पे आ जाऊँ, इफ आई कम टू दी मैनेजरियल साइड और दी स्टाफ कल्चर साइड, yes, girls in the manufacturing end don't want to step in because they feel they can't walk out or they can't go out, and that is not because the girls feel that. It is because the hiring agency or the hiring team, which has more of men in the HR team, feel that the girls cannot work, they cannot walk onto the factory sites, they cannot walk on to places where still construction is happening. मैं बहुत सारे पेपर इवेंट्स अटेंड करती हूँ और वहाँ का ना एक मेजर क्वेश्चन होता है, why not girls? वहाँ हमारा हमेशा एक ही रिप्लाई होता है, आर यू रेडी और आर यू रेडी टू एक्सेप्ट गर्ल्स एट दैट पोजिशन। तो ये होना कि विमेन नहीं है, फैक्ट्री साइड्स पे आपको काफ़ी विमेन मिलेंगी, बट एक्सेप्टेंस ऑफ विमेन इन दी मैनेजरियल रोल, और एज अ CEO आई वुड से आई थिंक I have faced a lot of challenges. This is the 4th year as a CEO again, and I see every year the challenges that come in front of me. There's somebody or the other who has a question which is unanswerable, and still they have to know, as a CEO you are supposed to do it. So women are very strong in the in any circle of life or in any circle of professionalism. वर्किंग सेक्टर में मेरी, जैसे सर ने बताया कि घर बैठे इतना कुछ या घर से हम लेडीज़ को लेकर आया और बनाया, ऐसे ही शायद हमने इस टाइम पे, मेरी लगाई हुई 40 फैक्ट्रीज़ हैं इंडिया में, और उसमें कुल मिलाकर जो हमारी लास्ट 31 मार्च की काउंटिंग थी, हम पे 6770 औरतें हैं इन 40 फैक्ट्रीज़ में। एंड
It is very clear we keep promoting और एक demo plant अभी मैं खुद ला रही हूँ which is going to be 100% led by women. No men to be even addressed or entertained in that unit. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Kritika. Rahul, MSME सेक्टर में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम देख रहे हैं कि लाइक एवरी ईयर पेमेंट डिलीज कम होना, अफोर्डेबल क्रेडिट लिमिट का ना मिल पाना, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट्स बताते हैं कि इसके कारण बहुत ज़्यादा जो है वो MSME खासतौर पर जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करते हैं बहुत ज़्यादा इससे जो है वो हम चैलेंजेस फेस कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है लाइक वी ऑल हैव एक्सपोजर, वी ऑल हैव एक्सेस, बट वो लोग जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं है, जो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, उनके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है और इससे ओवरऑल MSME सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसका क्या आप एक पॉलिसी ओरिएंटेड सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं जिसपे हम एक ऐसा फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर पाएँ कि जो इनफॉर्मल सेक्टर जो ऑलमोस्ट 90% के आसपास है उसको हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में लेकर आ पाएँ और इससे ये जो एक चैलेंज है जो अफोर्डेबल क्रेडिट का या एक जो एक पेमेंट डिलेज का जो लार्ज कॉर्पोरेशन के साथ MSME को फेस करना पड़ता है, ये हम सॉल्व कर पाएँ, इसको लेकर आपका क्या एक आउटलुक है? So I think any SMA to grow, any MSME to grow, it's very important. Three things have to be aligned. One is you need to have technology upgradation. One is convenience in getting your permissions in place, and one of the most important part is access to finance. Finance plays a very critical role when you want to have a growth in the MSME sector. So there are various areas or scope where finance can be gained by MSME. So like I'll tell you a background of us. We started our company in 2018. We started as a bootstrap company, and then in 2023 we were there in Shark Tank season 2, where we came for a funding for a private equity. Then in 2024 we became India's first listed 3D printing company, where we are in NSE Emerge right now. So government has put a lot of areas where you can get funding. It is up to the individual to go and approach these various areas where they can get finances. Government have scheme like the CGT MSE, where you get 1 crore up to funding with zero collateral. There are other also various Pradhan Mantri Yojana. There are various schemes where you can get funding with zero collateral and you get funding based on your turnover or your business plans. So individuals can approach these kinds of areas. Also there are a lot of institutes who give private funding. So it is just that we need to have the right mentorship, you need to have the right roadmap where you can generate funds for the company, and hence I think the government is playing its role by having various areas. Now it is the role of the the institutes or the academia where we teach people where are these funds and how we can approach and use them. Thank you so much. So Prabhuji, like there's one thing which is very critical nowadays, especially when government is talking about the net zero, sustainability part. आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के ऊपर डील करते हैं, आपको क्या लगता है लाइक MSME सेक्टर ग्रो कर रहा है, हम न्यू टेक्नोलॉजी न्यू इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, बट ये जो एक सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट है, क्या MSME सेक्टर उसको लेकर इतना लाइक सीरियस है ओवरऑल कि हम विकास तो कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग, बट ये जो सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट है इसको लेकर हम कितना सीरियस है एज ए MSME सेक्टर? क्या कुछ ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं जो अभी शायद नहीं है या होने चाहिए, या एज अ इंडस्ट्री लीडर हमको और क्या क्या फर्दर स्टेप्स लेना चाहिए ताकि ये जो सस्टेनेबिलिटी वाला जो पार्ट है वो भी उतना ही रिलेवेंट रहे जितना हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बना रहे? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत इतना अच्छा क्वेश्चन है कि भाई दुनिया पूरा सस्टेनेबिलिटी बात करता है, बट वो सस्टेनेबिलिटी का कॉस्ट फैक्टर इतना क्रिटिकल और इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे राहुल जी और कृतिका मैम को पता है कि कुछ भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने में कि हमें जो कॉस्ट, मतलब हम सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट को बैलेंस रखने में हमारा बहुत क्रिटिकल होता है, तो कॉस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, बट आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इजी। आई एम टेलिंग फ्रॉम माई बैक, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आज दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट है कपड़े का बैग जो हम बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने ऐसा कुछ मतलब फैब्रिक्स हमने डेवलप किया जिसका प्योर कॉटन का फैब्रिक है, समझ लो 100 रुपये मीटर, और रिसाइकिल प्रोसेस हमने करके उसको हमने लेके आया कि करीब करीब 70 रुपये मीटर। सो वी हैव बॉट डाउन दैट कॉस्ट। सो हाउ डिड वी ब्रिंग दैट कॉस्ट? सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कोर फैक्टर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, where India is very good in thinking,
बट वी ऑल हैव टू ब्रिंग इनटू एक्शन. हम बहुत पढ़ते हैं, हम बहुत देखते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, बट हम टाइम नहीं बिताते हैं कि भाई ये चीज़ को किया जाता है. वो टाइम में चाइना जैसा जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोग रिसर्च भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. तो आई एम टेलिंग यू वेरी मच पॉसिबल. लास्ट ईयर आई एम मतलब जस्ट शेयरिंग माई फाइनेंशियल्स. लास्ट ईयर हमने 15 करोड़ का बिजनेस किया था. वी जस्ट क्लोज 106 करोड़ दिस मार्च, ओनली सेलिंग बैग्स. एंड द वर्ल्ड नीड्स कॉटन कैरी बैग्स. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, कलकत्ता में सिर्फ 5,000 करोड़ का लोग बैग बेचते हैं. एंड ट्रस्ट मी, जूट बैग्स, कॉटन बैग्स, ओनली कलकत्ता. और हमारे गांव में जैसे तमिलनाडु जैसा, वहाँ पे तो मतलब अब छोड़ दीजिए. तो ऑल ओवर इंडिया में मैं तो मतलब कोल्हापुर का इचलकरंजी का एक मुलगा हूँ. वहाँ से मैं 100 करोड़ का मैं सोचा भी नहीं था यार. नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 15 करोड़ वी विल रीच 100 करोड़ फॉर सस्टेनेबिलिटी. It is very much possible. Cost is an important factor. That is our USP. Me and my wife, we keep spending a lot of time on research and we make sure the cost is at the right place. And I'm telling you, sustainability is the future. आने वाला 10 साल हमारा है. अभी चाइना के पास उतना sustainability नहीं है. हिंदुस्तान में, भारत में 100% सस्टेनेबल चीज़ें हैं. हम खाने में सस्टेनेबिलिटी यूज़ करते हैं, पहनने में भी यूज़ करते हैं, और इस्तेमाल भी जो दुनिया सस्टेनेबल यूज़ करेगा वो हिंदुस्तान से जाएगा. ये मेरा वादा है. थैंक यू सो मच प्रभु जी, दिस वॉज रियली वंडरफुल. हमारे पास 5 मिनट का टाइम है. लाइक माय लास्ट क्वेश्चन लाइक इज फॉर ऑल ऑफ यू. लाइक एज यू मेंशन कृतिका की एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कोई एज बैरियर नहीं है. आप लाइक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ बिगनिंग. वी हैव अ कंट्री जहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट लाइक 66% जो पॉपुलेशन है लाइक बिलो 35 ईयर्स है. तो मैं ये आप सबसे लाइक चाहता हूँ कि एनी मैसेज जो हमें देख रहे हैं यहाँ पे या जो हमें सुन पा रहे हैं लाइक फ्रॉम एनी मीडियम, अगर कोई एमएसएमई सेक्टर में आना चाहिए, कोई भी उसके पास कोई स्टार्टअप आइडिया हो, बहुत सारे फियर्स होते हैं लाइक व्हेन आपके पास जब आपको स्टार्ट कर रहे होते हो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या एनी सॉर्ट ऑफ कोई बैक नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है कुछ. या दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू. मैं आप सबसे ये चाहता हूँ कि आप लोग विद द टाइम कंस्ट्रेंट कि हमें जो आप लोगों को सुन पा रहे हैं लाइक जो यूथ जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मोटिवेशन की कमी है, एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की कमी है, एनी मैसेज जो आप सब देना चाहें स्टार्टिंग फ्रॉम यू. उन्हें बात करनी चाहिए. ट्रस्ट मी, नहीं किसी से भी जो इस चीज़, अगर देखिए क्या होता है ना, डर तब तक है जब तक आप उसको अपने आप तक सोच रहे हैं. या मैंने कभी सोचा हो कि मैं 2019 में जब 1 नवंबर की शाम को बैठ के कंपनी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, ये ना जानते हुए कि 2020 में कोविड आएगा. एंड मेरा पहला साल था 2020, 2021 अगेन. और वो 2 साल कुछ ना करके अगर मैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर को एक एम ले रही हूँ और 23-24 फाइनेंशियल ईयर पे ऑलरेडी एक 70 करोड़ मार्क पार कर चुकी थी, तो मैंने बात करी थी कुछ ऐसे लोगों से जो इस बारे में सोच सकते थे. तो खुद तक रख लेना चीज़ों को इज नॉट गोना हेल्प अस. देयर आर 100 पीपल और देयर आर 100 यूनिट्स और देयर आर 100 इनोवेटिव आइडियाज दैट आर स्टिल अवेटेड एंड नीड टू कम आउट. पीपल नीड टू टॉक. आई एम श्योर यहाँ पे बैठे हुए बहुत से लोग हैं जो इसके बाद आपसे बात करना चाहेंगे. So, you know what I feel with my journey is that for anybody to start, the first thing is to start. You start small, but you should start, and then you scale fast. So we as a company, when we started 2019, we were 2 employees, 250 square feet की जगह, and we started a company. We never knew that today we'll become a listed company, 100 crore का valuation, you know, stuff like that. So you need to start somewhere. Once you start, you will get a roadmap. People will join your journey. You will get mentors who will help you in growth. Like, you know, my colleague, like, you know, rightly said, execution is the result. Idea सबके पास है. हम इधर बैठे हैं, जितने भी लोग, सबके पास आइडियाज है. हमको ये करना है, हमको वो करना है, हम ये कर लेंगे. आइडिया सबके पास होता है. जीतता वही है जो एग्जीक्यूट करता है. So start small, make it big, and we are in the right space to do it. Thank you. So I'm so grateful that both my colleagues have addressed the, you know, very important factor of मैं जो point बोलने वाला था कि fear of starting. हमें सबको स्टार्ट करना है. हमें सबको, हम जो वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में देखते हैं, हमें जाना है यूएसए, हमें बीवी बच्चे को लेके आना है वहाँ पे. वी ऑल वांट टू गो टू द डेस्टिनेशन, बट सबके लिए पैसा लगता है. बट पैसा कमाने के लिए सबको डर लगता है. रिच बनने के लिए सबको डर लगता है. सो आई वुड लाइक टू ऐड कृतिका जी's एंड राहुल जी's वर्ड. इट इज़ वेरी सिंपल, फियर ऑफ स्टार्टिंग. तो एक मैं सिर्फ 10 सेकेंड लूँगा. फियर में 2 तरीके होते हैं. एक होता है अनरियल फियर, दूसरा होता है रियल फियर. रियल फियर क्या होता है? आपके सामने शेर खड़ा है, कोई गन लेके रखा है, मारने वाला. दैट इज रियल फियर, जो जिंदगी में 1% भी नहीं होता है. 99% क्या होता है? अनरियल फियर. अरे मैं स्टार्ट किया, पैसा चला गया तो
नहीं हुआ तो, मैं फेल हो गया तो 99% हमारा जिंदगी सिर्फ अनरियल फियर में हम जीते हैं. अगर कोई अनरियल फियर से आज कोई मैन्युफैक्चरर बना, आज कोई 100 करोड़ का कंपनी क्रिएट कर पाया, वो मैं हूँ. मेरी बहुत फटती थी 10 साल के पहले, ट्रस्ट मी, बहुत. Sorry for my language, I come from Bombay, so it just got carried away. I'm very sorry. So, see, that's the real self of me. The unreal fear dominated my life. Then I decided, okay, what is happening in my mind? मेरा दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ भी देख रहा हूँ यार, डर लग रहा है. ये देख रहा हूँ, डर लग रहा है. बट चालू करने के लिए डर लग रहा है. मैंने सोचा डर को छोड़ दूंगा पीछे. एक स्टेप रखा, आज 100 स्टेप रखा, आपके सामने हूँ मैं. So I invite everyone to break the fear, which is unreal fear, and become who you are and make India proud. And thank you so much, ma'am, really for starting this and inviting all of us. It's my pleasure to be here and share the dais with Kritika ji and Rahul ji. Thank you so much for Deepak asking wonderful questions. Thank you so much, sir. It's our pleasure as well. So with that, this session concludes. Thank you so much everyone. आजकल के टाइम पे जब हर कोई बोलना चाहता है, आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. और yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for having us. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Thank you so much, guys. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause. And I would request you to let's take a group photo together. And I would request Mr. Amit Kumar, founder MSME, to please come and join us and let's felicitate our panelist and moderator. What an engaging and inspiring session it was. Thank you so much. Thank you so much, Deepak, for moderating this session. And let's applaud together for 3 of our panelists. Thank you so much.